Explain effect of government expenditure on money supply. Government expenditure has a direct impact on money supply. Higher the government expenditure, higher will be money supply. Follow this? When government expenditure rises, government borrows money from Reserve Bank of India. गवर्नमेंट किससे उधार लेती है? आरबीआई. उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं. व्हेन गवर्नमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ with RBI, it avails facility by way of means, facility of ways and means advances, also called as overdraft facility. The excess money availed by government is used to make payments. These payments are deposited in bank by the recipient of money. This result in excess deposit with commercial bank. देखो क्या होता है, ये सवाल है कि explain the effect of government expenditure. Government expenditure has direct impact on money supply. Higher the government expenditure, higher will be the money supply. कैसे? गवर्नमेंट का खर्चा जब बढ़ जाता है तो इट बोरोज फ्रॉम आरबीआई. जब पैसा शॉर्ट हो जाता है तो फैसिलिटी लेते हैं. मीन्स है, वेज एंड मीन्स फैसिलिटी बोलते हैं. क्या? फिर जो एक्सेस मनी अवेल्ड बाय गवर्नमेंट इज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स. दीज पेमेंट्स आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द रिसिपिएंट ऑफ मनी. तो इससे फिर मनी सप्लाई चालू हो जाती है कि नहीं? बोलो जिस. तो ये 16 लाख करोड़ होता है, 18 लाख करोड़ होता है. अभी आजकल 16,61,000 है बजटरी डेफिसिट. पैसा लाएंगे 16 लाख करोड़. सोचो. एक्सप्लेन हाउ बैंक क्रिएट क्रेडिट. क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इज, ये तो तुम लोग ने 12th में किया हुआ है. इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक. बैंक्स लेंड मनी not only of deposit received by them but also create deposit themselves. No, bank lend money out of deposit received, but they also create deposit themselves. That is why bank is in position to lend money more than what is actually received by way of deposits. This additional money, अभी देखो ये कैसे बताया है. मिस्टर ए, बैंक ए के पास इनिशियल डिपॉजिट आया 1000 रुपया. उसने कैश रिजर्व कितना रखा? 20%. और 800 रुपया लोन दे दिया ना. तो 800 रुपया दूसरी बैंक में आएगा. यस और नो? उसमें से 160 रिजर्व रखेंगे और 650 लोन देंगे. ऐसा करते 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 ऐसा करते 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 क्या होगा कि ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस कितना हुआ था? 1000. तो जब इसका टोटल 1000 हो जाएगा ना, किसका? इसका 1000 हो जाएगा कि नहीं? तो फिर जब इसका 1000 होगा तो ये 5000 होना चाहिए ना फिर, क्योंकि initial deposit is always 5 times higher, no? तो ये 1000 रुपीज इज 20%. ये 5000 होगा और ये 4000 होगा. तो फिर मल्टीप्लाई कितनी बार क्रेडिट क्रिएट हो गया? टोटल कितना बैंक और डिपॉजिट हो गया? 5000 हो गया कि नहीं? सपोज इंडिविजुअल डिपॉजिट्स 10,000 in with bank A. This is known as primary deposit. Bank A will not lend all this money. Some part of it will be kept as cash reserve to meet withdrawals. Suppose cash reserve ratio is 10%, 20%, okay, 10%. Bank A will keep 1000 as cash reserve
and remaining amount it will use for giving loan of 9,000, which is also known as secondary or derivative deposit. Let us assume that bank A lends 9,000 to the businessman. For this, an account will be created with rupees 9,000 and the businessman will be allowed to withdraw money as and when required. Now suppose the businessman will make payment to creditors through checks. अगर जिसको लोन दिया तो बैंक में रखेगा और किसी को चेक देगा कि नहीं? बैंक का पैसा कैश तो नहीं आता है ना, तो वो चेक रख देगा. द रिसिपिएंट ऑफ दिस चेक्स विल डिपॉजिट दैम इन सम अदर बैंक, से बैंक बी. सो आउट ऑफ दिस डिपॉजिट रुपीज 9,000, बैंक बी will keep 900 as cash reserve and remaining 8100 will be utilized. 10% से लिया है. हाँ, तो ये फिर बाद में 7290 का लोन देंगे. टोटल क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक इज अराइव्ड एट with the help of the following formula. What? A is equal to 1 minus 1 by A into 1 by R, where R is the reserve ratio. Suppose 10,000 primary deposit is 10,000 and CRR is 20%. The amount of credit will be 10,000 divided by 0.2, that is 50,000. आया समझ में? The cash reserve maintained by banks shows leakages in banking money. This process will stop when cash reserve reaches 1,000. When total reserve reaches 1,000, initial deposit will be 5,000. So multiplier is 1 divided by cash reserve ratio is a multiplier. Follow this? तो ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन अब है ना empirical analysis of money supply is important. एम्पेरिकल एनालिसिस में जो रियल में हो रहा है, नॉट थियोरिटिकल. इट फैसिलिटेट्स एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज ऑफ मनी ग्रोथ. तो इकोनॉमिक मॉनेटरी डेवलपमेंट्स का ज़्यादा आइडिया आती है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. इट इज़ असेंशियल फ्रॉम मॉनेटरी परस्पेक्टिव as to provide a framework to evaluate whether stock of money in the country is consistent with the standard of stability and to understand the nature of deviation from the standard. जैसे है ना, ये हमने क्वेश्चन सी ये था ना, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये कि नहीं. फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई, ये सेम है. एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ मनी सप्लाई इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it helps you to understand monetary development, deeper analysis of monetary developments and deeper understanding of causes of money growth. Money growth क्यों हो रही है? It is essential from monetary policy perspective as it provides a framework to evaluate whether stock of money in the economy is consistent with the standard of price stability and understand the nature of deviation. The central bank also all over the world adopt monetary policy to stabilize price level and GDP growth.
by directly controlling supply of money. This is achieved mainly by managing quantity of money. देखो प्राइस स्टेबिलिटी एंड जीडीपी ग्रोथ नो, ये दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. उसमें हमको इट इज दीज थिंग्स आर प्राइस स्टेबिलिटी एंड जीडीपी ग्रोथ आर डिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन. टू अचीव अ डिजायर्ड ग्रोथ, टू अचीव अ डिजायर्ड price stability, we require certain quantity of money in circulation. This is achieved by managing the quantity of money. The success of monetary policy depends upon on controllability of money supply and the monetary base. तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है. Now here what is high powered money? High powered money is M1, no? तो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, नेट होना चाहिए, ये नहीं आएगा M1 में, एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ आरबीआई. तो ये आ जाएगा, देखो 15,473, 6943 एंड 501, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा M1. फिर ये भी वापस पूछा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी? नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, RBI credit to commercial bank sector, RBI's net monetary liabilities. तो ये दूसरा मेथड बताया. High powered money is also known as reserve money, which determines the level of liquidity in the price level in the economy. RBI net रिजर्व मनी, इसका दूसरा फॉर्मूला है नेट RBI क्रेडिट टू गवर्नमेंट प्लस RBI क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर प्लस RBI क्लेम्स ऑन बैंक, RBI नेट फॉरेन एसेट्स प्लस गवर्नमेंट्स करेंसी लाइबिलिटीज टू पब्लिक माइनस RBI's नेट मॉनिटरी लाइबिलिटीज. तो ये ना नेट वर्थ ऑफ RBI बता रहा है. ये कुछ ये ना प्रॉब्लम आधा ही है. ये फॉर्मूला याद करो, एक मिनट. हाँ, तब ये थर्ड वाला करते. सपोज M3 इज 4,50,000 crores. M3 currency with public is 3,000 crores. Demand deposit with bank is 10,000 crores. Other deposit with RBI is 1 lakh crore. Saving deposit with post office is 1,50,000 crores. Total deposits of with post office saving bank organization excluding national saving certificate is 20,000 crore. Calculate net time deposits and M4. अब ये ना ये सब MTP में दिए हुए क्वेश्चंस. M3 is equal to M1 plus net deposits with the banking system.
एक मिनट, देखो नेट टाइम डिपॉजिट्स। ना ईयर M3 इज, ये तुम लोग को क्या पूछा है, कैलकुलेट नेट टाइम डिपॉजिट्स एंड M4। तो M1 क्या है, M1 तो ये लोग ने M3 दिया हुआ है। M3 में क्या क्या आता है देखो, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। M1 में क्या आता है, M1 में करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स, देखो करेंसी विद पब्लिक 3000 करोड़ है ना, सॉरी अच्छा M1 क्या आएगा, करेंसी विद पब्लिक इज 3000 करोड़, डिमांड डिपॉजिट्स 1 लाख करोड़, तो 1 लाख 3000 हो गया, और ये 1 लाख करोड़, तो स्टेटमेंट ऑफ अपनी थियरी है ना, ये इंट्रो है, तो पहला लेक्चर इंट्रो आएगा, फिर थियरी आएगा। नहीं ये नहीं, पहला इंट्रो ये आएगा। हाँ, ये आएगा पहला इंट्रो आएगा ना, फिर ये सीधा, फिर ये तो ये कभी आएगा, ये लास्ट में, लास्ट में। हाँ पहले डाल दे 5 मिनट, 1 मिनट ना इधर, हाँ 3000, तो 2 लाख, देखो ये ना M1 क्या है, M1 में ये आएगा, ये आएगा, और तीनों आएंगे 2,03,000 करोड़, तो 2,03,000 करोड़ इज M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, तो ये 2,03,000 है, और ये 4,50,000 है, तो ये 2,47,000 होगा ना। फिर M4 इज इक्वल टू वॉट, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद सेविंग अकाउंट्स एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो वो है 20,000 करोड़। M3 इज 4,50,000 करोड़ प्लस 20,000, दैट इज 4,70,000 करोड़। आया समझ में? Explain deposit expansion multiplier, how it is calculated, वो 1 upon cash reserve ratio। Deposit expansion multiplier describes amount of additional money created by commercial bank through process of lending। ये हमने क्रेडिट एक्सपांशन किया था कि नहीं? तो अगर बैंक में जमा करेंगे पैसा तो मनी का सप्लाई बढ़ जाता है ना, बहुत लोगों को पैसा मिल जाता है ना। द डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर इज थस इनएक्सट्रिकेबली टाइड टू बैंक्स रिजर्व रेशियो, मतलब इट इज, उसको अनटाई नहीं कर सकते हैं। दिस मेजर टेल्स अस हाउ मच मनी विल बी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम फॉर अ गिवन इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी। It reflects bank's ability to increase the money supply. The deposit expansion multiplier is reciprocal of cash reserve ratio. तो अगर 20% है reserve ratio, then multiplier will be 1 divided by 0.2, that is 5. Compute reserve money from the following data published by RBI. रिजर्व मनी, अच्छा ये रिजर्व मनी का ये, हाँ ये फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम ऊपर बरोबर नहीं दिया था ना, ये प्रॉब्लम ऊपर का है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है देखो, और मैंने बोला था ना आधा प्रिंट हुआ है। हियर इट इज,
ये है ना इसका, दिस वन. सी कंप्यूट रिजर्व मनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पब्लिश बाय आरबीआई. ना इसकी फॉर्मूला रिजर्व मनी इज इक्वल टू नेट क्रेडिट, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट, सरकार को दिया पैसा वो, आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक्स, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स plus government's currency liability to the public minus RBI's net monetary liabilities. देखो आरबीआई ने जितना उधार गवर्नमेंट को दिया है, कमर्शियल सेक्टर को दिया है, और आरबीआई क्लेम्स टू बैंक, बैंक को दिया है, फॉरेन एसेट से आरबीआई, तो आरबीआई का पैसा है. फिर गवर्नमेंट लाइबिलिटीज टू पब्लिक इज एक्चुअली नोट्स इशूड बाय आरबीआई. नो, गवर्नमेंट करेंसी लाइबिलिटी टू पब्लिक इज नोट्स इशूड बाय आरबीआई. तो वो ऐड करने का उतने एसेट्स होंगे और माइनस आरबीआई नेट मॉनिटरी लाइबिलिटीज. तो ये देखो, ये ऐड करने का, ये ऐड करने का, ये ऐड करने का, ये भी ऐड करने का, ये भी ऐड करने का, और ये माइनस करने का. ये पांचों ऐड करो और ये माइनस करो. दैट इज रिजर्व मनी. ऐड ऑल दिस 5 और ये माइनस करो. 68032 माइनस करने का. Compute the credit multiplier required. Cash ratio is 10% and 12% for every 1 lakh deposited in banking system. What will be the total credit money? तो इसमें 10% से डिवाइड करने का, तो हो जाएगा 1 लाख डिपॉजिट किया तो 10 लाख हो जाएगा, और यहाँ पे 8 lakhs हो जाएगा. If cash reserve ratio is 10%, ओके. आया समझ में? 10 लाख क्रिएट करेंगे,
लिख लो ये। हाँ, अब ये देखो, ये पूरा बाहर करना पड़ेगा तुम लोग को। कैलकुलेट लिक्विडिटी एग्रीगेट L2। ये देखो, अब है ना, ये नया नॉर्म से M1 M2 नहीं, NM1 न्यू M1 NM1। पहले ना करेंसी डिपॉजिट इज पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इज बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI, तो डिनोटेड बाय NM1। सेम है M1 एट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स। फिर डिपॉजिट लिया, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिया तो M2 मिला। फिर लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स लिया तो वो हो गया M3। एड कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये M3 हो गया। ऑल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो वो हो गया। पहले M1 तो सेम ही रहेगा, फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिया तो M2 NM2 हो गया, फिर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स लिया और कॉल फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NM3 हो गया। फिर पोस्ट ऑफिस ले लेंगे तो हम लोग पहुंच जाते L1। देखो, टर्म डिपॉजिट्स। अच्छा, L1 के बाद क्या ऐड करने का? टर्म डिपॉजिट्स विथ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और रीफाइनेंसिंग्स। तो ये सब देखो, हमारे पास कैश कितना, टर्म डिपॉजिट विथ, ये तो लेंडिंग में ऐड करना पड़ेगा। सी पहले L1 प्लस टर्म डिपॉजिट्स प्लस ये लोग ने NM3 दिया है, ये गिवन NM3। इसके बाद डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस ऐड करने का 1320, ये ऐड किया तो यू गेट L1। अभी ये L1 मिल गया। फिर L1 में टर्म डिपॉजिट्स विथ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, तुम लोग ने जो पैसे जमा किए हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, टर्म डिपॉजिट्स विथ, ये ऐड करने का, टर्म डिपॉजिट्स रीफाइनेंसिंग एंड विथ लेंडिंग 590 एंड 750 ऐड किया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विथ FIS 450, ये ऐड कर देंगे तो तुम लोग को मिल जाएगा L2। एक मिनट, इसमें ऐड कर दो और एक चीज़, क्या, और उसमें ऐड कर दो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इश्यूड बाय FIS। अब है ना, ये तुम लोग को ये पूरा बाहर करके जाना पड़ेगा और उसमें से लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। ये पूछा नहीं है, ये वाला पूछा था ये लोग ने।